Yes, very good morning class. Let us start our class with this pledge again. I, Kulvinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Yes, we were doing lesson number 1 that was related to interpreting topographical maps. Today we'll discuss first about ridge. A ridge is a physical feature formed due to the convergence of two mountain faces. It has a raised crest with many peaks of different heights. As it has steep sloping sides, its contour lines are closely spaced and are oval in shape. ठीक है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड स्टीप स्लोप्स जो होती हैं कंटूर्स आर क्लोजली टुगेदर. ठीक है, रिज यू कैन सी द पिक्चर ऑफ रिज. ठीक है, इट्स अ रिज. इट हैज़ रेज क्रेस्ट विद मैनी पीक्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स. ठीक है, एज इट हैज़ स्टीप स्लोपिंग, क्योंकि इसकी स्टीप स्लोपिंग है, एंड आर ओवल इन शेप्स. तो स्टीप स्लोपिंग है, दैट्स वाई द कंटूर लाइन्स आर closer together, पास है, and its contour lines are closely spaced, पास है, because of steep sloping and are oval in shape, and इसकी जो contour lines की shape क्या है, oval है. So this contour lines represent a ridge. Now come to gap. A gap is a low-lying area between two hill peaks. गैप क्या होता है? एक लो लाइंग एरिया होता है जो दो हिल पीक्स के विचकार होता है. दस अलाउंग अ रूट थ्रू इट, वहाँ से इधर उधर जाने का रूट भी बन जाता है. ठीक है, सो कम टू द सैडल. A saddle is a depressed land mass that slopes between two peaks of a hill or mountains, thereby appearing like the saddle of a horse. Contour for the peaks are concentric circles with a large gap between the peaks' outermost contours. तो you can see the picture of saddle. ये saddle की picture है. ठीक है, it represents saddle. It looks like a क्या कैसे नज़र आता है कि ऐसे हॉर्स के ऊपर सीट रखी होती है, सैडल ऑफ अ हॉर्स. इसलिए सैडल क्या होती है, सीट होती है हॉर्स के ऊपर रखी हुई, उसकी तरह नज़र आता है, इसलिए इसका नेम क्या है, सैडल. ये क्या है? सैडल इज़ अ डिप्रेस्ड लैंड मास दैट स्लोप्स बिटवीन टू पीक्स ऑफ अ हिल और माउंटेन के बीच वाली जो डिप्रेस्ड लैंड होती है, ये वाली, दैट इज कॉल्ड सैडल. एंड द कंटूर लाइन्स ऑफ सैडल, यू कैन सी द पिक्चर, दीज आर कंटूर लाइन्स फॉर सैडल. आफ्टर दैट वी हैव कोल. Associated with mountains, a col is the lowermost point on a ridge between two peaks. They are often found on prominent ridges. You can see the picture of col. It's a col. ये we have already discussed pass, है ना? Pass भी हमने ऊपर discuss किया था. No, it is pending. We'll discuss later. So it's a col, natural feature of earth, landform, coal, and coal represent in the contours like this. ठीक है, ऐसे coal represent होगा on the topographical map. Next we have pass. A pass is the highest path. A pass is the highest path between two mountains or hills. I'll show you the picture also. It is shown by a drop in the contour heights. You can see the picture. It's a pass.
पास क्या, पास इज द हाईएस्ट पाथ बिटवीन टू माउंटेन्स और हिल्स, टू माउंटेन्स और हिल्स के बीच होता है. एंड पास रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टूअर्स ऑन द टोपोग्राफिकल मैप लाइक दिस. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव सेटलमेंट. नेक्स्ट वी हैव सेटलमेंट. सेटलमेंट क्या है? अ सेटलमेंट refers to group of houses that people build for living. Settlements can be in rural or urban areas. The location where a settlement is constructed is called a settlement site. तो settlement क्या होती है? ग्रुप्स ऑफ हाउसेज के बने हुए ग्रुप जहाँ लोग अपने घर बनाते हैं और रहते हैं. तो सेटलमेंट्स कैन भी, ये रूरल भी हो सकती है, अर्बन भी, विलेज में भी हो सकती है, शहर में भी बन सकती है. वो लोकेशन जहाँ रहने के लिए हम अपनी सेटलमेंट्स लगाते हैं, जहाँ रहने के लिए अपना घर बनाते हैं, रूरल एरिया में हो या अर्बन एरिया में हो, दैट कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ सेटलमेंट साइट. उस लोकेशन को सेटलमेंट साइट बोला जाता है. सेटलमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स की सेटलमेंट्स होती है, टेम्परेरी और परमानेंट. एज द नेम सजेस्ट, टेम्परेरी सेटलमेंट्स रेफर टू मेक shift housing such as huts or tents. Such settlements started when humans began to grow crops. तो टेम्परेरी में क्या है, हट्स, टेंट्स, जो हट बने होते हैं, टेंट लगे होते हैं, वो आती हैं टेम्परेरी में. ये कब बनानी स्टार्ट की थी ह्यूमन ने? जब उन्होंने फसलें ग्रो करनी स्टार्ट की थी. फर्टाइल लैंड एंड वाटर सोर्सेज अट्रैक्ट पीपल टू बिल्ड देयर होम्स नियर देम. तो क्या है, जो फर्टाइल लैंड सी और जो साथ में पानी मिलता था, इसने लोगों को अट्रैक्ट किया था अपनी सेटलमेंट्स लगाने के लिए. टेम्परेरी सेटलमेंट्स कैन बी सीन नियर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और रिफ्यूजी कैंप्स. एक कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ टेम्परेरी सेटलमेंट्स दिखाई देती है, जो रिफ्यूजी कैंप्स में दिखाई देती है. कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही है बहुत बड़ी बिल्डिंग की, तो उसको बनाने वाली लेबर, सारी की सारी टीम वहाँ पास ही रहेगी, तो वो अपने लिए एक टेम्परेरी सेटलमेंट लगाएगी. टेम्परेरी सेटलमेंट्स में इवेंचुअली भी कन्वर्टेड इनटू परमानेंट सेटलमेंट्स. तो वो परमानेंट है, वो टेम्परेरी जो परमानेंट में कन्वर्ट हो सकती है. परमानेंट सेटलमेंट इज करेक्टराइज्ड बाय परमानेंट स्ट्रक्चर्स सच एज बिल्डिंग्स एंड बंगलोज. तो जब वहाँ जो सेटलमेंट है ना, परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता है कि बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग, पक्की बिल्डिंग्स और बड़े और बंगलोज होते हैं. Settlement patterns. Settlements in villages are rural, while those in cities and towns are urban. वही जो विलेज में सेटलमेंट्स लगती है वो रूरल होती हैं, सिटीज़ एंड टाउन्स में वो अर्बन होती है. As settlement starts to grow, they begin to display a distinct pattern. Such patterns show the space and distribution of settlements when seen from air. Settlements pattern can be of 3 types. बोलते हैं कि जो सेटलमेंट्स लगती है विलेज में और अर्बन एरिया में, वो सेटलमेंट्स स्टार्ट हो गई थी लगनी, और इसके साथ क्या हुआ कि जो ये सेटलमेंट्स है, इसके हमारे पास 3 पैटर्न्स हैं, मीन 3 टाइप्स हैं. 3 पैटर्न्स कौन से हैं? वन इज न्यूक्लिएटेड, डिस्पर्स सेटलमेंट एंड लीनियर सेटलमेंट. फर्स्ट इज न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स. First type of settlement है nucleated settlement. Nucleated settlements are those in which houses and other buildings are tightly clustered around a central feature such as a place of worship, village green or crossroads. कहते हैं nucleated settlements कौन सी होती है? जिसमें क्या होते हैं, जो घर, ठीक है, हाउसेज और अदर कोई और बिल्डिंग कहाँ पास बने होते हैं, किसी प्लेस ऑफ वर्शिप किसी गुरुद्वारा टेम्पल के आसपास, या किसी विलेज के आसपास, या एक रोड के आसपास, मतलब पास बने होते हैं. वेरी फ्यू हाउसेज आर फाउंड इन द सराउंडिंग फील्ड्स. जो आसपास के फील्ड है वहाँ घर बने हुए दिखाई नहीं देते. सच न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स आर यूजली टर्म्ड हैमलेट्स और विलेज अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड और फंक्शन. हैमलेट्स भी बोलते हैं इस तरह के सेटलमेंट्स को. इन इंडिया न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स आर फाउंड इन द शिवालिक वैली पर ऐसे सेटलमेंट देखने को मिलती हैं, एंड इन द स्टेट्स ऑफ मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा. इन स्टेट्स में न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स पाई जाती है. न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड क्लस्टर्ड सेटलमेंट. तो इसको क्लस्टर्ड सेटलमेंट भी बोलते हैं. इट्स अ पिक्चर ऑफ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स. ऑल हाउसेज आर क्या है, हाउसेज और बिल्डिंग्स आर टाइटली क्लस्टर्ड अराउंड अ सेंट्रल फीचर. नेक्स्ट वी हैव सेकेंड टाइप ऑफ
settlement, that is dispersed settlement. A dispersed settlement pattern is one in which individual houses and farmers are widely scattered throughout the countryside. It occurs when farms or houses are set among fields or spread out along roads rather than concentrated on one point. Houses are connected by paths or cart tracks. These settlements are always rural and usually the farmers live in such settlements to stay near their cultivated land. Sometimes dispersed settlements are found as a result of people living overpopulated villages. You can see the picture. ठीक है, स्कैटर्ड होते हैं घर, दूर दूर बिखरे होते हैं. मोस्टली क्या होते हैं डिस्पर्स सेटलमेंट्स में, जो फार्मर्स हैं वो आते हैं, जहाँ तो वो इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ उसकी लैंड फर्टाइल लैंड होती है, उसके लिए वो अलग आकर रहना स्टार्ट कर देते. कभी कभी क्या होता है कि जिस जगह वो रह रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसको छोड़कर वो यहाँ आ जाते हैं. मीन डिस्पर्स सेटलमेंट में क्या होता है, यहाँ हाउसेज एंड फार्म्स आर वाइडली स्कैटर्ड, दूर दूर बिखरे होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव लीनियर सेटलमेंट्स, लास्ट टाइप ऑफ settlement. Linear settlements are arranged in long and narrow lines. The settlements can include houses, inns, shops, petrol pumps, garage, etc. Such settlements are usually built along an already existing route like a railway track, road or river bank. Some settlements can also be built alongside geographical features like hillsides, valley edges or lake shores. Linear settlements are found in the middle Himalayas में ये पाए जाते हैं and along the roads of Ganga Jamuna plains. तो जो गंगा जमुना प्लेन्स है उसके जो रोड्स है उसके आसपास दो. लीनियर सेटलमेंट्स और ऑल्सो कॉल्ड लीनियर और चेन विलेजेस, जिसमें विलेजेस की हाउसेस की चेन बनी होती है, दैट इज़ कॉल्ड लीनियर सेटलमेंट्स और लीनियर और चेन विलेजेस. तो इस विलेजेस में क्या होता है, सेटलमेंट्स अरेंज्ड इन लॉन्ग एंड नैरो, लंबे में होती है और नैरो होती है. द सेटलमेंट्स कैन इंक्लूड हाउसेज इन, इसमें हाउसेज होते हैं, इन पेट्रोल पंप्स होते हैं, गैराज वगैरह हो सकते हैं इसमें. ठीक है. तो ये एक रेलवे ट्रैक के आसपास हो सकती है, रोड के आसपास होती है और जहाँ रिवर बैंक के शोर पर हो सकती है. सो our lesson is only up to this much. With this, goodbye to all of you.